गाइस इसमें से मुझसे क्वेश्चन पूछें प्लीज। जी गाइस आपने सुना है जी ये? गाइस आर यू विद मी? यस सर। यस सर। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता ना सबको सब चीज समझ आ गई हो। जी पूछे सर जब मुझसे। पढ़ेंगे एक दफा तो दोबारा। तो बेटा पढ़ो, मैंने कब रोका आपको? चले मैं एक दफा रिकैप दोबारा कर दूंगा, मैं एक दफा दोबारा रिकैप करता हूँ। बेसिकली हमारे पास जब भी हमने AST मेथड से डिजाइन करना है, वी नीड टू चेक फॉर 3 केसेस। ठीक है, कैसे चेक करना है, क्यों चेक करना है, वो वी विल लेट यू नो लेटर ऑन। अभी जस्ट मैं आपकी एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। So 3 things. The first thing is that we need to assume that concrete and steel are in elastic range. Concrete और steel जो है वो elastic range में. What it means physically? It means that let's say if I have concrete stress strain curve something like that. अगर concrete का stress strain curve something like that है, तो ये जो initial linear elastic portion है, we will just assume that. ठीक है, ये हम अज्यूम करते हैं 0.6 टाइम्स FC डैश। स्टील का क्या मतलब है? इफ स्टील इज इन इलास्टिक रेंज, we have typical stress strain curve something like that, meaning to that we need to only consider up till that portion, only the yielding portion, up till yielding हम consider करेंगे. Then we have these set of equations, these set of diagrams. But when concrete appeared, cracks appeared on the tension side, जब क्रैक यहाँ पे appear हो जाए, तो concrete below the neutral axis needs to be ignored, needs to be neglected. That's why we do not have concrete part here. Third case is when compression stresses exceeds the elastic range. Compression stresses ये जो टॉप पे stresses है, टॉप फेस के ऊपर, अगर ये elastic range से exceed हो जाए, then we have this type of stress diagram, 0.85 FC dash. If I say calculate the moment capacity, flexural capacity or analyze the section, जब मैं कहूँ कैपेसिटी निकालें, फ्लेक्चर एनालिसिस करें या कैपेसिटी एनालिसिस करें या एनालाइज द बीम, always it means that you need to calculate MR, resistive movement, or sometimes we say internal resistive movement, sometimes we say flexural capacity, sometimes we say capacity analysis. It always meaning to do that you have to calculate MR. MR is tension force multiplied by LA or compression force multiplied by LA for all the 3 cases. ये T कैसे निकलेगा, C कैसे निकलेगा, I will let you know by the way. But for time being, tension force multiplied by perpendicular distance we will get. Another important thing, before the start of any question, you need to calculate C and you need to calculate basically that LA. Or in other words, you need to calculate K and you need to calculate J. These K and J are very important factors. These K and J are normally less than 1. You need to calculate that. How? I will let you know how to calculate that. But before the start of any problem, before the start of analysis, we need to calculate K and we need to calculate J. जी गाइस काइंडली जब भी आप ओडीएल लेक्चर में आए तो एक दफा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वहीं पे एड्रेस हो जाएंगे। जी इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? सर एक चीज पूछनी थी। जी जी
सर वो जो आपने इफेक्टिव डेप्थ का बोला था कि मतलब टेंशन वाली साइड से रिइंफोर्समेंट बार के सेंटर से लेके और कंप्रेशन वाली साइड से पूरे मतलब टॉप तक, तो सर इसकी क्या रीजन है, मतलब कि हम दोनों साइड से सेंटर सेंटर तक या एंड से एंड्स तक क्यों नहीं ले रहे? नहीं बेटा, ये जस्ट हमने अपनी नोटेशन बनाई हुई है कि डी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ है। वो बेसिकली अगर सिंगल लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट है तो रिइंफोर्समेंट के सेंट्रोइड से लेके टॉप फेस तक, दैट इज अवर डी। ठीक है, अगर लेट्स से वी हैव टू लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट, देन इन इस ग्रुप के सेंट्रोइड से लेके वो ये है। लेट्स से आई हैव थ्री लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट, one is this, one is this. Now its centroid will be this one. अब इसका सेंट्रोइड ये हो जाएगा इस ग्रुप ऑफ रिइंफोर्समेंट का, इसके सेंट्रोइड से लेके टॉप सरफेस तक, दैट इज बेसिकली डी। सर पिछली स्लाइड में कंप्रेशन के सेंटर तक था ऊपर। कंप्रेशन के सेंटर तक कब है? दिस इज डी बाय द वे, डी इफेक्टिव डेप्थ वो एलए है, दैट इज लीवर आर्म। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज नॉट डी, दिस इज एलए, लीवर तो आर्म। सर ये एल ए सेंटर से LA is from tension where reinforcement is and where we have C component. If we have that triangle, ठीक है, इसका जो centroid है that is basically somewhere here. If this, अगर ये वाली जो side है that side is, let's say if this side is H, so then इसका जो centroid है top से वो होगा H/3, is it? यस सर। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के सेंट्रोइड, सो डिस्टेंस इसके सेंट्रोइड से ये, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डी, दिस इज नॉट डी बाय द वे, दैट्स व्हाई आपने ये देखा होगा, यहां पे देखिएगा ये LA इज J टाइम्स D एंड J इज अ फैक्टर व्हिच इज लेस देन 1। ठीक है, D तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है, लेकिन जो LA है दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर। दी, ये बात समझ आई आपको? सर वो तो समझ आ रही है, Yes, मतलब लेनी किस तरह, लेकिन सर जब हम सेंट्रॉइड से ले रहे हैं तो नीचे वाले पोर्शन को हम मतलब डी में क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? नीचे वाले कौन से पोर्शन में? इस पोर्शन में? यस सर, अभी इसके सेंट्रॉइड से अगर रिइंफोर्समेंट के लिए तो जो नीचे हमारी डेप्थ आ रही जो है, हमारी टेंशन फोर्स है ना, टेंशन फोर्स यहाँ पे भी सेंट्रॉइड पे है और कंप्रेशन फोर्स भी सेंट्रॉइड पे है, दोनों सेंट्रॉइड पे है बेटा। हाँ, डी जो है, डी इज नॉट अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, डी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड ऑफ टेंशन टू टॉप सरफेस। ओके सर। D is not, but जो ये C और T के दरमियान डिस्टेंस है that is from centroid actually. Alright guys, इसको एक दफा घर जाके जरूर एक दफा वीडियो भी देखिएगा और इसको चैप्टर 2 है that is basically from your book. इनिशियल पार्ट अभी हमने इसका कुछ स्टडी किया, एक दफा जाके बुक से भी जरूर रीड कीजिएगा, हम फिर नेक्स्ट टाइम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके सर, चलेंगे। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम गोइंग टू एंड दैट मीटिंग। सो अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।